بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کے دن بچوں کا حساب کیسے کیا جائے گا؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن حمل والی عورت کے حمل ضائع ہو جائیں گے اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنی ماں باپ کو بھول جائے گی اور اسی دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحان آپ کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جو قبر کے امتحان کو پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے ہونے والے امتحان ادھک اس سے زیادہ سخت اور دشوار ہوں گی۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اس طرح جیسے اسے مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اسے مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوال کے جواب ٹھیک دے دیتے ہیں تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ
बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब व किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं? तो इसके मुतालिक रिवायत मिलती है कि छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देंगे और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के उन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लफ होते हैं, लिहाजा इसी वजह से बच्चे से कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व ताला खूब जानते थे कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में है और एक लंबे कद का आदमी उस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वह शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो शख्स को देखा है वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बाली होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए, यानी वो बच्चा इस्लाम पर ही पैदा हुआ और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गया। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चों के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़ा होकर वह काफिर या मशरिक बनता है, जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरती पर पैदा होता है और यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको बाद में यहूदी या मशरिक या ईसाई बना देते हैं। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान ऐसे होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उसको काफिर, मशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हुआ लेकिन वह बालिग होने से पहले पहले मर गया तो वह इस्लाम पर ही मरेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चे की किस उम्र में बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। तो इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि बच्चे जब अकिल और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफर करता है तो उसके
कुफर का एतबार किया जाएगा और वह बच्चा काफिर होगा। और उलमाए इकराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वह काफिर हो जाएगा। बात करते हैं कि काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मकाम में इनको रखा जाएगा। मुसलमान के बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह वह भी बच्चे जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घर में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले वो फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व ताला इन मासूम बच्चे को भी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि वह किसी को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको अमाल का मुकल्लिफ ना बना दे, और बच्चे अमाल के मुकल्लिफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला मासूम बच्चे को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और बाद रिवायत के मुतालिक काफिरों और मुशरिकों के मासूम बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन ये जन्नत में जन्नती मुसलमान बच्चों के मुंतहिक होंगे और उनकी खिदमत की ड्यूटी सर अंजाम देंगे, और ये मुसलमान जन्नती बच्चों के खादिम होंगे। और बाज़ उलमा इकराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाएंगे। इन तमाम तर रिवायतों में से सबसे सही रिवायत ये है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह अता फरमाते हैं। और बालिग होने से पहले पहले मरने वाला तमाम बच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में होते हैं और उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है, फिर चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो या काफिरों के बच्चे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहले कौम हलाक हुई और अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। जाते जाते एक कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।